ओके, क्लास 11 फिजिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आगे बढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स नाउ। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके फ्रिक्शन की बात करते हैं फटाफट। ओके, तो कंसिडर देयर इज एन ऑब्जेक्ट, there is an object of mass m, and if you are applying some force F, then definitely the object should come in motion and there should be some acceleration of this object as per the formula F equal to ma. So object must get the acceleration F by m. Object must get this acceleration F by m. इतना acceleration object के पास आना चाहिए, right? But what will happen if the object is placed on some surface, right? And if you apply the force F, if this force is small enough, then you will find that the object is not going to move. अगर किसी टेबल के ऊपर बड़ा सा बॉक्स पड़ा हुआ है एंड अगर कोई छोटा बच्चा उसको धक्का मारने की कोशिश करेगा तो छोटा बच्चा उसको धक्का नहीं मार पाएगा, राइट? सो वेयर दिस फोर्स इज गोइंग, ये फोर्स कहाँ जा रहा है? So definitely if this object is not moving, that means there has to be some other force जो इस external force को बैलेंस कर रहा है। तो वो जो दूसरा फोर्स है ना, जो ऑब्जेक्ट इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, that is the friction in the static condition which is called as Fs, that is called as static friction. What is it called? It is called as static friction, right? So if object does not move, on applying external force, if the object does not move on applying external force, we can say the friction force must balance this external force, right? Now if you increase this external force, the friction force will also keep on increasing, right? That means the friction force is self adjusting. friction force कैसा होता है? self adjusting होता है। जब तक ये ब्लॉक मोशन में नहीं आएगा ना, तब तक आप जितना एक्सटर्नल फोर्स दोगे ना सामने, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स बनेगा और नेट फोर्स विल बी जीरो, राइट? सो विल राइट हियर until object moves, the friction force will be equal to the external force. Now the question is, the friction force होता कितना है? तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से कांटेक्ट में रखते हैं तो सरफेस की वजह से क्या लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है। क्या लगता है बच्चों? दो सरफेस जब कांटेक्ट में होंगे तो उसकी वजह से कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है। तो रूल ऐसा कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, राइट? तो ये जो आपका Fs है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs इज वॉट स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है जो ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोक रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट मस्ट मूव, but due to the friction object is not moving, that is a static friction, right? So this static friction is directly proportional to the normal reaction and this proportionality constant is mu s. What is this proportionality constant? Mu s. So basically friction is equal to mu into n. Just remember this, friction is mu into n. Okay, what is mu n? Mu s क्या है? Mu s is coefficient of static friction. क्या है बेटा? ये है आपका coefficient of static friction. It is coefficient of static friction, and this coefficient of static friction is independent of the area and it only depends on the material. It only depends of the material and independent of contact area. It is independent of contact area, right? What is this n? N is the normal force जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, that is the normal force n, right? Okay, now moving further, now if you इंक्रीज दिस एक्सटर्नल फोर्स, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना चालू करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है,
राइट, दैट इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिट, उसके आगे फिर फ्रिक्शन लगने वाला नहीं है, राइट, मतलब उसके आगे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हार मान जाएगा एंड ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग. सो आई विल राइट हियर एज ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन. जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा ना, अब जो फ्रिक्शन है ना उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. तो सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट. सो वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स हियर. अब भी फ्रिक्शन अपोज करेगा एंड दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के. और इज दैट काइनेटिक फ्रिक्शन, बट अब फ्रिक्शन जो है वो हार मान चुका है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना बचेगा? नेट फोर्स बचेगा बच्चों F माइनस एफ के. राइट, दिस इज एफ के, फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये तो मैंने कोएफिशिएंट लिख दिया एफ के, राइट. तो अब नेट फोर्स कितना बचेगा? नेट फोर्स बचेगा आपका एक्सटर्नल फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. जब ऑब्जेक्ट स्टेडी था तो स्टेशनरी फ्रिक्शन आएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा. जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आया तो काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाला है. फॉर्मूला सेम है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो म्यू इंटू एन, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है इसका, राइट. सो आई विल राइट हियर as object comes in motion, as object comes in motion, the net force कितना बचेगा बेटा? तो आपका नेट फोर्स बचने वाला है एक्सटर्नल फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन. नेट फोर्स कितना बचेगा? नेट फोर्स बचेगा आपका एक्सटर्नल फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा ना, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई मास. बॉडी को जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय मास, इतना एक्सेलरेशन मिलेगा. तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा बहुत फोर्स जो है वो आपका कम हो जाता है, राइट. हियर यू कैन राइट दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू इंटू एन, बट यहाँ पे म्यू के आएगा एंड म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रिमेंबर वन थिंग, म्यू के इज ऑलवेज less than mu s. Kinetic friction is always less than static friction. Kinetic friction is always less than static friction. आप ये ऑब्जर्व करोगे बच्चों, एज द ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन, एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया ना उसके बाद उसको मूव करना आसान होता है. बट अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है ना तो वहाँ से ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना थोड़ा मुश्किल काम है. और वंस द ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन इट विल बिकम ईजियर टू कीप ऑन मूविंग द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स द काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन. Is it clear? So this is all about the friction forces, right? And remember one thing, friction always act parallel to the surface and in opposite direction of the motion. Friction always कहाँ लगेगा? Surface को parallel and opposite to the motion. तो friction will always act like that. Okay? चलिए कॉपी करेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे. फटाफट कॉपी करो. So let's solve the numerical number 5.7. It is given that determine the maximum acceleration of a train in which a box lying on its floor will remain stationary. Right now basically what happen, suppose कोई भी फ्लोर है, राइट, उसके ऊपर अगर कोई बॉक्स रखा है. नाउ यू मस्ट हैव दिस कॉमन एक्सपीरियंस कि जब ये फ्लोर को आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड में या बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट कर दोगे ना तो पॉसिबल है कि ब्लॉक जो है ना वो पीछे की तरफ स्लाइड हो जाए, राइट. तो अगर आप चाहते हो कि जो ब्लॉक है वो इधर का इधर ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहे, राइट. अभी आपको ट्रेन का केस दिया गया है, तो दिस इज एंटायर द यू कैन से द बोगी ऑफ अ ट्रेन. तो ट्रेन को आप कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकते हो ताकि ये बॉक्स जो है ना वो अपनी जगह पर ही रहे. जब आप ज़्यादा एक्सेलरेशन कर दोगे ना, अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेशन कर दोगे तो क्या होगा? ज़्यादा एक्सेलरेशन करने पे पॉसिबल है कि जो ब्लॉक है ना वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्लाइड हो जाए पीछे की तरफ. इट इज़ पॉसिबल, राइट. अब नॉर्मल एक एग्जाम्पल सोचो बच्चों, अगर मान लो ये गाड़ी बहुत ही स्पीड में चल रही है और एकदम सडनली ब्रेक मार दिया गया तो क्या होगा? एकदम सडनली ब्रेक मार देंगे ना तो ये ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ स्लाइड हो जाएगा. और अगर उसी तरह से गाड़ी को एकदम सडनली एक्सेलरेट करेंगे ना तो पॉसिबल है कि ब्लॉक पीछे की तरफ स्लाइड हो जाए बिकॉज ऑफ इनर्शिया. बिकॉज ऑफ व्हाट? इनर्शिया. तो आप चाहते हो कि ब्लॉक स्लाइड ना हो तो कितना आप मैक्सिमम एक्सेलरेट कर सकते हो? चलिए कोई बात नहीं, जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना आपको सारे के जितने भी फोर्स है ना उस फोर्स को कंपोनेंट को दिखा देना है. तो मान लेते हैं कि ट्रेन जो है ना उसका एक्सेलरेशन है ए जितना. कितना एक्सेलरेशन है ट्रेन का? ए जितना एक्सेलरेशन है. अब एक बात बच्चों दिमाग में डाल लो, बराबर दिमाग में डाल लो कि व्हेन एवर देयर इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इनर्शिया फोर्स विल ट्राई टू अपोज दैट.
इनर्शिया फोर्स क्या करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। एंड इनर्शिया फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन m into a, and that m into a will always act in opposite direction of the motion। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो फ्री बॉडी डायग्राम से जुड़े हुए, राइट, तो आपको हमेशा m इंटू ए जो है ना वो ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, राइट। तो क्योंकि ये आपका ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसका जो इनर्शिया फोर्स है जिसको हम फिक्सिशियस फोर्स भी कहते हैं, सो दैट इनर्शिया फोर्स विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एज द ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द इनर्शिया फोर्स m इंटू ए विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इनर्शिया फोर्स कहाँ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा m इंटू ए। चलिए और कौन से फोर्स आएंगे, किसी भी चीज़ का जो है वो आपके पास वेट हमेशा होता है, ये नीचे की तरफ लगता है, वेट ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये तो हमेशा आपको लिखना ही लिखना है। एंड दिस वेट इज इक्वल टू व्हाट, वेट इज इक्वल टू बेसिकली मास इनटू ग्रेविटी। वेट क्या होता है, वेट होता है भाई मास इनटू ग्रेविटी, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता ही लगता है विदाउट एनी डाउट, राइट। चलिए सिमिलरली जहाँ भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आए, राइट, तो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स आ जाएगा n, ओके, सो यू विल गेट द नॉर्मल फोर्स। अभी एक और फोर्स बाकी है, फ्रिक्शन फोर्स। तो आप ये सोचो ब्लॉक किस तरफ स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है, तो अगर गाड़ी एकदम से आगे एक्सेलरेट हुई ना तो पॉसिबल है कि ब्लॉक जो है वो फ्लोर पे पीछे की तरफ स्लाइड हो जाए। ब्लॉक किस तरफ स्लाइड हो जाए, पीछे की तरफ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, राइट। तो ब्लॉक इज ट्राइंग टू स्लाइडिंग इन दिस डायरेक्शन, ब्लॉक जो है वो पीछे की तरफ स्लाइड हो जाएगा, बट उसको रोकने का काम करेगा फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर। फ्रिक्शन ऑलवेज कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है और फ्रिक्शन ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन क्या कोशिश करेगा बेटा, फ्रिक्शन कोशिश करेगा ब्लॉक को रोकने की। वापस एक बार सारे कंपोनेंट में आपको बता देता हूँ बहुत ही डिटेल में। चलिए सबसे पहले आपने ब्लॉक रखा है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रहे हैं आगे की तरफ, राइट, ट्रेन एक्सेलरेट कर रहे हैं आगे की तरफ, तो उसका जो फिक्सिशियस फोर्स है वो कहाँ लगना है, पीछे की तरफ, राइट, क्योंकि जब ट्रेन आगे की तरफ जाएगा ना तो ब्लॉक को पीछे की तरफ धक्का लगेगा इनर्शिया की वजह से, एंड दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक है तो उसका वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, और जहाँ भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आएंगे देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। ओके, लास्ट बचा फ्रिक्शन फोर्स। एज द ब्लॉक इज ट्राइंग टू स्लाइड इन दिस डायरेक्शन, the friction force will act in opposite direction in this direction, right? Now what we will do, now we will just balance the component of the forces। इतना काम आपका हो गया, उसके बाद आपको खाली बैलेंसिंग करना रहेगा। So I will write here for balancing of block। चलो बच्चों बताओ हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है ma इस डायरेक्शन में, और दूसरा लग रहा है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टली एक ma फोर्स है और दूसरा फ्रिक्शन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ma शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन, ma शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन, राइट, दैट्स अ फर्स्ट थिंग। चलिए वर्टिकल डायरेक्शन में जाइए, तो वर्टिकली ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ mg है, तो यू कैन बैलेंस देम बाय नॉर्मल इक्वल टू mg। ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ mg है, बैलेंस कैसा हो जाएगा, ये n इक्वल टू mg इज गोइंग टू बी बैलेंस लाइक दिस, ओके। चलिए नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, अभी हमने आगे देखा बेटा, फ्रिक्शन होता है आपका म्यू इंटू n। फ्रिक्शन का फॉर्मूला अभी हमने आगे देखा ना, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू n। एंड चेक इट आउट, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg, लेट्स पुट इट हियर। सो ma इज इक्वल टू म्यू एस इंटू mg, नॉर्मल की जगह मैंने रख दिया है mg। चलिए m विल बी कैंसल्ड, सो व्हाट यू रिक्वायर, दिस एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज म्यू एस इंटू जी। चलिए म्यू एस वैल्यू कितना है 0.15, एंड टेक द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी 9.8 और 10, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, लेट्स टेक 10। So the maximum acceleration of a train is 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रेन का एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक होगा ना, तब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। बट एज द एक्सेलरेशन विल बी मोर देन 1.5, जैसे ये ट्रेन 1.5 से ज़्यादा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा ना, तो ये ब्लॉक जो है ना वो स्लाइड हो जाएगा पीछे की तरफ। ब्लॉक इज गोइंग टू बी स्लाइड इन बैकवर्ड डायरेक्शन इफ द एक्सेलरेशन विल बी मोर देन दिस, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही एक्सेलरेशन तक रोक सकेगा, इसके आगे फिर फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके ऊपर एक 4 kg ऑब्जेक्ट रखा गया है, लेट्स से द मास इज m। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइन अंटिल 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, धीरे धीरे प्लेन को इंक्लाइन किया अप टू 15 डिग्री
विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब अभी आपका प्लेन ऐसे हो चुका है at 15 degree with the horizontal. Now there is a very general observation you can say. Okay, fine. If this is the surface, right, and this is the block. Okay, if I keep on increasing the angle, what will happen? एक टाइम ऐसा आ जाएगा when the block is going to slide, right? ओके, सो हमें दिया यहाँ पे कि जब 15 डिग्री जितना इंक्लाइन किया ना, कितना इंक्लाइन किया, 15 डिग्री. When it is inclined by the angle of 15 degree, the mass just begin to slide. मतलब 15 डिग्री तक स्लाइड नहीं हो रहा है. 15 से थोड़ा भी ऊपर किया ना एंगल, नाउ द ब्लॉक विल स्लाइड. मतलब 15 डिग्री इज द पॉइंट और 15 डिग्री इज द एंगल जहां तक आपका ब्लॉक जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है. एंड आफ्टर 15 डिग्री इट विल स्लाइड. ओके, फाइन. सो वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कितना होगा, कोई बात. चले हम क्या करेंगे, वापस हम कंपोनेंट लेने वाले हैं. ओके, चले जैसे मैं कंपोनेंट बोलूँगा आपको सबसे पहला कंपोनेंट ले लेना है वेट. वेट कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, कोई सवाल ही नहीं है. वेट कहाँ लगता है, वेट ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज W इक्वल टू mg. वेट ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेकंड पॉइंट, नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. राइट नाउ दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, सो नॉर्मल विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. This is the normal force which is acting perpendicular to the contact surface. Normal always कैसा लगेगा, normal always लगेगा perpendicular to the surface in contact, right? And gravity will always act in vertically downward direction. Fine. Now, one more thing. Your block is trying to slide in this direction. The block is trying to slide in this direction, but who is stopping the block? The friction force is stopping the block, and friction always act in opposite direction of the motion and parallel to the surface. ब्लॉक इस तरफ स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ रहा है फ्रिक्शन इस तरफ लग के. So your friction is acting in this direction, Fs. Your friction is acting in this direction, that is Fs, right? Okay, now what I will do, I have to resolve the forces. What I need to do is I need to resolve these forces. एंड एज आई नीड टू रिजॉल्व द फोर्सेस, मुझे फोर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ले जाना है. ओके, सो हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर लेट अस टेक द कंपोनेंट ऑफ द W. हम W के कंपोनेंट बना लेते हैं, राइट? एंड आई एम कंसिडरिंग दैट दिस इज माई y एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर टू द y, दिस इज योर x एक्सिस, राइट? So I will obviously take two components of the W. एक W कंपोनेंट आपका, W आपका ऐसे है, राइट? तो एक कंपोनेंट इस एक्सिस पे आएगा और एक कंपोनेंट इस एक्सिस पे आएगा. दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. आपका जो वेक्टर है ना, आपका जो वेक्टर है वो दो कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है. जब भी आप कंपोनेंट करो, वेक्टर कहाँ होना चाहिए, दो कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए. नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा 15 डिग्री, तो दिस एंगल इज ऑल्सो सेम, दैट इज थीटा. याद रख लेना बच्चों, दिस इज क्वाइट नेचुरल थिंग, राइट? क्योंकि देखो ये सरफेस को परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसको परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसको परपेंडिकुलर ये लाइन है, राइट? तो ऑब्वियसली जो एंगल इन दो लाइन के बीच में बनेगा वही एंगल इन दो लाइन के बीच में बनेगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर साइड्स, राइट? ओके, तो जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा होगा ना यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे बनने वाला है. तो नाउ वी विल हैव द टू कंपोनेंट्स ऑफ W. चलिए, ये कंपोनेंट जो है ना वो एग्जैक्टली एंगल के बाजू में है और एंगल के बाजू वाला कंपोनेंट होता है कॉस थीटा. एंगल के बाजू वाला कंपोनेंट क्या होता है बेटा, एंगल के बाजू वाला कंपोनेंट होता है कॉस थीटा. तो ऑब्वियसली दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा होगा. क्या होगा भाई, आपका दूसरा कंपोनेंट होने वाला है साइन थीटा. चलिए, जैसे ही मैंने ये कंपोनेंट ले लिया, अब मुझे शांति हो चुकी है. अब मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट बैलेंस दिस फोर्सेस. सो आई विल राइट हियर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ब्लॉक. चले बच्चों, पहले एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं. तो एक्स डायरेक्शन में वहाँ पर है Fs. कौन है एक्स डायरेक्शन में, इस तरफ Fs है, और एक्स डायरेक्शन में इस तरफ कौन सा फोर्स है, W साइन थीटा. कौन सा फोर्स है, W साइन थीटा. गिव इट नेम एज 1. चले वाई डायरेक्शन में जाइए बच्चों. वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है और वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स है W कॉस थीटा. दैट इज 2. वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, W कॉस थीटा. चलिए, जैसे ही आपने इतना लिख दिया ना, अब आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन क्या होता है बेटा. फ्रिक्शन होता है F इक्वल टू म्यू इंटू एन. फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू इंटू एन.
एंड व्हाट इज एन? हियर इट इज डब्ल्यू कॉस थीटा. सो एन की जगह डाल देंगे हम डब्ल्यू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा. ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू विल बी कैंसल. सो योर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज साइन बाई कॉस, दैट इज tan थीटा, दैट इज tan 15 डिग्री. थीटा आपको यहाँ पे 15 डिग्री दिया हुआ है, राइट. एंड द वैल्यू ऑफ द tan 15 इज इक्वल टू 0.27. कितना है बच्चों, ये वैल्यू जो है ना tan 15 का, दैट इज 0.27. सो इन दिस क्वेश्चन योर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.27. कितना है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो 0.27 है इस केस में. तो अब आप दिमाग में डाल लो बच्चों, जब भी आपको इंक्लाइन प्लेन दिया होता है ना, तो उस इंक्लाइन प्लेन के लिए द एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट विल टेंड टू स्लाइड, ऐसा एंगल जहाँ पे ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड होने की तैयारी करेगा. सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ दैट एंगल जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्लाइड करने की कोशिश करेगा. तो इसको एज अ फॉर्मूला आप याद करेंगे, म्यू इक्वल टू tan थीटा ऑन इंक्लाइन प्लेन. ऑन इंक्लाइन प्लेन म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. राइट, इज इट क्लियर? मैंने सारे कंपोनेंट किस तरह से लिए हैं. सी, जरूरी नहीं है कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ही लेना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो पैरेलल टू द प्लेन लिया, वाई जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिया. ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज जब मैं ऐसा करूँगा ना तो मुझे खाली एक ही फोर्स के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, दैट इज ऑफ डब्ल्यू. राइट, क्योंकि एक फोर्स आपका ऑलरेडी इस एक्सिस के ऊपर है एफएस, एक ऑलरेडी आपका इस एक्सिस के ऊपर है नॉर्मल, और एक ही फोर्स आपका ऐसे है डब्ल्यू वाला. मतलब आपको खाली डब्ल्यू के ही कंपोनेंट लेने हैं. अगर मैं ये रखता ना एक्सिस तो क्या प्रॉब्लम होता पता है? बहुत प्रॉब्लम होता है. आपका नॉर्मल फोर्स ऐसे है तो आपको नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट लेने पड़ते. फिर आपका फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है इंक्लाइन, तो आपको फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट लेने पड़ते, और डब्ल्यू आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे दो दो चीज़ों के कंपोनेंट लेने पड़ते. यहाँ पे आपको दो फोर्सेस के कंपोनेंट लेने पड़ते, यहाँ पे एक ही फोर्स के कंपोनेंट से काम हो गया. दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लाइन द प्लेन. दैट इज अप टू यू. या तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखो, और जब इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन होंगे ना तो मोस्टली हम क्या करेंगे, मोस्टली हम एक्सिस जो है ना उसको इंक्लाइन कर देंगे, ताकि आपको कंपोनेंट थोड़े कम लेने पड़े, आपका काम थोड़ा आसानी से हो जाए. चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे सब बच्चे. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5.9. ओके, तो आपको दिया हुआ है बेसिकली एक सरफेस है जिसके एंड के ऊपर एक पुली है. पुली के आर पर एक दूरी है, एक तरफ 3 kg मास को हैंग किया गया है और दूसरी तरफ ऊपर एक कार्ट है 20 kg का. ओके, यहाँ पे कार्ट और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आपको दे दिया है, दैट इज 0.04. आपको दो चीज़ें फाइंड करना है. फर्स्ट यू विल फाइंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड सेकेंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट. स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा और कार्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा वो आपको फाइंड करना है. सो इन दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस. चलिए मैं आइडेंटिफाई कराता हूँ फोर्स के कंपोनेंट क्या है वो, देखना ध्यान से. हाँ बच्चों, ओके, वेरी फर्स्ट थिंग, फोर्सेस ऑन दिस 3 kg. राइट, चलिए तो 3 kg का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा. और वेट कितना होता है भाई? वेट होता है m इंटू जी. इसका मास है 3 kg, तो इसको वेट कितना लगना है? 3 इंटू जी. कितना वेट लगना है भाई इसको? इसको वेट लगना है 3 इंटू जी. जितना किस डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट. चलिए देन डोरी बांधी है भाई, डोरी के ऊपर अगर नीचे की तरफ एक्शन है तो ऊपर की तरफ क्या लगना है? रिएक्शन लगने वाला है. और डोरी में जो रिएक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं. डोरी में जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं, राइट. चलिए देन obviously this block will move in downward direction and this block will move in this direction. That is quite obvious. यहाँ से ये खींचेगा उसको तो ये ट्रॉली आगे आएगी और ब्लॉक नीचे जाएगा. तो as I told you the fictitious force will always act in opposite direction of the motion. तो यहाँ पे आपका ब्लॉक का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है ना, तो जो फिक्सिशियस फोर्स होता है m इंटू ए वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ. मास कितना है? 3 kg. तो ये कौन सा फिक्सिशियस फोर्स है बेटा आपका? ये फिक्सिशियस फोर्स है 3 इंटू ए, जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. चलिए, इसको कोई फ्रिक्शन लगने वाला नहीं है बिकॉज इसके आजू बाजू कोई सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो इसको फ्रिक्शन नहीं लगेगा, राइट. तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को ये 3 फोर्स लगेंगे, राइट. तो यहाँ पे इंडिविजुअली पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द फोर्स, सिस्टम का इंडिविजुअल पार्ट और उसके ऊपर जो फोर्स लगते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम. तो इसे हम कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम. और इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम. दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, राइट. चलिए, ओके, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. अभी बात करते हैं ये ब्लॉक के लिए क्या क्या होगा. ध्यान से देखना बच्चों.
चलिए, ये ब्लॉक का भी वेट होगा, वेट कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मास है 20 kg, तो इसका वेट होगा 20 है जो लगा नीचे की तरफ। ओके, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में है तो ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स। दो सरफेस जब कांटेक्ट में होगा तो कांटेक्ट की वजह से कंपलसरी नॉर्मल फोर्स लगता है, जो यहाँ भी लग रहा है ऊपर की तरफ। चलिए, अब यहाँ पे आपका कार्ड जो है ना वो आगे की तरफ जा रहा है। कार्ड अगर आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन उसको रोकेगा। यहाँ पे दो सरफेस कांटेक्ट में है और फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि ब्लॉक मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे एफ के, जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन सा फोर्स, एफ के, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कहाँ पर है बेटा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए, कोई और फोर्स बाकी है, या सभी दो फोर्स और बाकी है। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये स्ट्रिंग के अंदर, डोरी के अंदर ये जो टेंशन है ना वो एक्शन बना इस तरफ, डोरी के अंदर ये जो टेंशन है वो एक्शन बना इस तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा, यहाँ पे उतना ही टेंशन बनेगा, रिएक्शन। डोरी के अंदर एक तरफ जो टेंशन बना, अब ये टेंशन जो है वो डोरी के लिए एक्शन का काम करेगा, उतना ही यहाँ पे डोरी में क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, सेम रिएक्शन, राइट। ओके, ध्यान रखना, जब भी कोई डोरी होगा ना बच्चों, जब भी कोई डोरी होगा ना ऑलवेज, तो उसके अंदर टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे एक दूसरे के अपोजिट। दिस इज क्वाइट कॉमन, आपको हर एक क्वेश्चन में ये करना ही है, क्योंकि एक टेंशन जो है वो एक्शन बनेगा, उतना ही दूसरा जो है वो रिएक्शन देने का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक टेंशन इस तरफ आया इस 3G की वजह से, तो दूसरा टेंशन ऑपोजिट आएगा। दे बोथ विल ऑलवेज मीट विद ईच अदर, इतना ध्यान रखना है आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक और फोर्स बाकी है, फिक्सिशियस फोर्स। क्योंकि आपका ये कार्ड जो है वो आगे जा रहा है, कार्ड कहाँ जा रहा है, कार्ड आगे जा रहा है ना, तो उसका फिक्सिशियस फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, m/a। सी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, बिकॉज दोनों एक ही डोरी से कनेक्टेड है, तो जितना इसका एक्सेलरेशन होगा इतना ही इसका भी एक्सेलरेशन होने वाला है, राइट। तो इसका मास है 20, तो इसका फिक्सिशियस फोर्स कितना होगा, 20a। कितना होगा इसका फिक्सिशियस फोर्स, 20 है। तो यहाँ पे इसके सारे फोर्स कंपोनेंट हो गए। वापस एक बार देखते हैं कौन कौन से हुए वो, राइट। मैं अलग से यहाँ पे कार्ड बना लेता हूँ वापस एक बार। दिस इज योर कार्ड, राइट, कनेक्टेड विथ सम स्ट्रिंग। चलिए, सबसे पहला लगेगा इसका वेट, वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m/g, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, ये दो हो गया। चलो, डोरी है तो डोरी उसको खींचने का काम करेगा विद द टेंशन T, डोरी उसको खींचने का काम करेगा विद द टेंशन T। चलिए, क्योंकि ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, फिक्सिशियस फोर्स आएगा पीछे की तरफ, ma, दैट इज 20 है इन दिस केस। ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन उसके अपोज करेगा, दैट इज फ्रिक्शन, दैट इज Fk, राइट। तो ये हो गया इसका आपका फ्री बॉडी डायग्राम। और ये जो आपका छोटा सा ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है 3G, ऊपर की तरफ है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ऊपर की तरफ है 3A। ओके, तो मैंने दोनों फ्री बॉडी डायग्राम को सेपरेट कर लिया। अब मुझे खाली इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, राइट। चलिए, मैं इक्वेशन बनाता हूँ बच्चों। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, ऊपर की तरफ है T+3A, क्या है भाई, यहाँ पे ऊपर की तरफ है T+3A, और दैट इज इक्वल टू 3G जो नीचे की तरफ है। जितना टोटल ऊपर की तरफ फोर्स है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स आपको ले लेना है। तो ऊपर की तरफ है T+3A, नीचे की तरफ है 3G। तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया बच्चा। आई विल राइट दिस एज T = 3A - 3G। आई विल राइट लाइक दिस, गिव इट नेम एज 1। ओके, चलिए अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ से पहले वर्टिकल चेक करो। तो वर्टिकली ऊपर की तरफ है नॉर्मल और नीचे की तरफ है mg। चलिए, कोई बात नहीं, वर्टिकली ऊपर की तरफ क्या है, n है, नीचे की तरफ है mg, कोई बात नहीं। चलिए, एक इक्वेशन बना। ओके, हॉरिजॉन्टल चेक करो यहाँ पे। लेट्स चेक द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरफ लग रहा है टेंशन इज इक्वल टू, इस तरफ कौन सा फोर्स है, 20A भी है और फ्रिक्शन भी है। इस तरफ है 20A प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। इस तरफ है आपका टेंशन और इस तरफ दो फोर्स है, दैट इज 20A प्लस Fk। आपको बैलेंस कर देना है। चलिए, अब आपको याद आना चाहिए बच्चों। चलिए, मैं इस इक्वेशन को वापस यहाँ लिखता हूँ, T = 20A प्लस Fk। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू × n। ये तो आपको याद आ ही जाना चाहिए, जहाँ भी फ्रिक्शन आएगा फ्रिक्शन की जगह क्या लिखना है आपको, म्यू × n लिखना है। चलो चेक करो, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, ये रहा आपका नॉर्मल कितना है, m/g, और ये मास कितना था आपका, 20 था ना, ये 20 था आपका, 20 kg का ये ब्लॉक है, इस 20G, राइट। तो ये नॉर्मल फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स है आपका 20G, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे दिया, ये रहा 0.04, दैट इज म्यू के। म्यू के कितना है, म्यू के आपका 0.04, तो दैट इज 0.04, और नॉर्मल कितना रखना है आपको, 20G। नॉर्मल कितना रखोगे आप, 20G रखोगे, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बना T का, राइट। एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर है T का, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है T का। मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज करना है। क्या करना है मुझे, दोनों इक्वेशन को खाली और खाली इक्वलाइज करना है। गिव इट नेम एज 2।
राइट चलिए, आप जैसे ही दोनों को इक्वलाइज करोगे ना, अभी आप नॉर्मली दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप ऑलवेज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम वही करेंगे, दोनों के टी को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2। अब देखते हैं आपका आंसर आना चालू हो जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड, आइदर यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन और यू कैन डू एलिमिनेशन, दैट इज अप टू यू। चलो तो यहाँ पे टी क्या है आपका 3a माइनस 3g, और यहाँ पे टी क्या है आपका 20a प्लस व्हाट इज 0.04 इंटू 20, 0.04 प्लस 20 कितना होगा 0.04 इंटू 20, दैट इज 0.8, दिस इज 0.8g। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बराबर। ये 3a को सामने ले लो, 20a में से 3a गया, ये बचेगा 17a, 20a माइनस 3a 17a, इसको आप यहाँ पे ले लो। इस टर्म को आप जैसे ही यहाँ पे लोगे ना, यू विल गेट दिस एस माइनस 3g। ओके चलिए, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है, मुझे लगा कुछ गलती हुआ है। दिस t इज गोइंग टू बी 3g माइनस 3a, बहुत जल्दी गलती पकड़ में आ गई। दिस t इज इक्वल टू 3g माइनस 3a, कोई बात नहीं, दिस इज 3g माइनस 3a, इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि करेक्शन ना हो। चलिए ठीक है, अब इसको सामने ले लीजिए, तो 3a सामने जाएगा प्लस हो जाएगा, 3a प्लस 20 है दैट इज 23a, 3a प्लस 20 है दैट इज 23a। इस g वाले टर्म को यहाँ पे लाइए, 3 माइनस 0.8 2.2g, 3g माइनस 0.8g दैट इज 2.2g, दैट इज 2.2 इंटू जी का वैल्यू डाल दीजिए बच्चों 9.8 टू द मोर प्रिसाइज, राइट। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में 10 कहा है तो आप 10 डालोगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 10 कहा है। अगर आपको क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया है ना, तो आप ऑलवेज कितना लोगे 9.8 लोगे। अगर इंडिकेट ना किया हो तो, इंडिकेट किया तो 10 ले लेंगे, दैट इज 23 इंटू a। चलिए तो आपको एक्सेलरेशन मिल चुका है बच्चों, एक्सेलरेशन आएगा आपका ये 22/23 एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन इज 0.956 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। कार्ट का इतना एक्सेलरेशन होगा, कार्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, कार्ट का एक्सेलरेशन होगा 0.956 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें टेंशन भी निकालना है, कोई बात नहीं, या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो या तो सेकंड इक्वेशन यूज करो, उसमें a का वैल्यू डाल दो जाके, आपको टेंशन मिल जाएगा। तो लेट्स फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कहाँ लिखो, इधर लिख दो ऊपर, चलिए ऊपर लिख देते हैं फाइनली। तो टेंशन इज इक्वल टू 3g माइनस 3a, a का वैल्यू कितना है 0.956, ओके दैट इज 3 इंटू जी का वैल्यू लेना है आपको 10 माइनस 3 इंटू 0.956। चलिए बता देता हूँ आपको कितना आता है ये, ओके 3 इंटू 0.956, 3 इंटू 0.956, ओके उसको माइनस करेंगे 30 में से, तो आपका आंसर आएगा 27.132। कितना आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा 27.132, 27.132 न्यूटन, दैट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1 वी हैव डन दिस, ये आपको लास्ट में करना है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन एंड बिलीव मी दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ही भयंकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, राइट, जहाँ पे हमने बेसिकली ये सीखा कि फोर्स के कंपोनेंट को किस तरह लेना है, मिस नहीं करना है। आप दिमाग में ना एक सीक्वेंस बना लो, आप दिमाग में एक सीक्वेंस बना लो, राइट, कि सबसे पहला फोर्स आपको लिखना है W, उसके बाद आपको लिखना है नॉर्मल। एक सीक्वेंस याद रखो, पहले W, फिर नॉर्मल, फिर फ्रिक्शन, राइट, और उसके बाद आप लिखोगे MA, राइट, और लास्ट में अगर दोहरी हुआ तो टेंशन। जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस, ताकि आप कोई भी फोर्स मिस ना करो, राइट, ताकि अभी W हर एक के अंदर कंपलसरी होगा, W इज कंपलसरी। नॉर्मल तभी आएगा जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो, अगर कांटेक्ट में सरफेस ही नहीं है तो नॉर्मल फोर्स नहीं आने वाला है, राइट। फ्रिक्शन भी तभी आएगा जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो, अदरवाइज फ्रिक्शन भी नहीं आएगा, ओके। कई बार फ्रिक्शन लेस सरफेस दिया होता है या स्मूथ सरफेस दिया होता है, वहां भी फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है। MA तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ही एक्सेलरेशन होगा, तो ही MA आएगा। टेंशन तभी आएगा जब दूरी के अंदर या ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ दूरी बांधा हो या दूरी के साथ ऑब्जेक्ट बांधा हो, तब टेंशन आएगा। तो इतने फोर्स आप सीक्वेंस में याद कर लो बच्चों, W N F M A T, राइट, एंड जरूरत के हिसाब से फिर आप उसको खाली बैलेंस करो, ओके। चलिए फटाफट इसको आप कॉपी कर लोगे ना, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है, कॉपी इट क्विकली, ओके। योर क्वेश्चन इज, सपोज देयर इज अ कार्ट, there is a card, right, okay, and there is some object here, this is your object, ये फिक्स नहीं है, this object is not fix। तो ऑब्वियस है कि अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, अगर आपने उसको छोड़ा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर जाएगा, बट आप चाहते हो ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे, राइट। सो इफ यू वांट कि ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे, तो ये कार्ट का एक्सेलरेशन कितना रखोगे ताकि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरे, right, let's say the mass of this object is 1 kg,
The mass of this object is 1 kg. So I will write here to prevent block from sliding, find acceleration of cart. Find the acceleration of the cart. If you want the block to stay with the surface, 1 kg का block है, चलो कोशिश करो. Okay, now let's solve this question. कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस बराबर. सबसे पहला तो ये वेट कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट इज इक्वल टू m इंटू जी. एम है 1 kg, तो वेट होगा आपका 1 इंटू जी. ओके. सेकंड फोर्स, चलिए पहले मैंने W लिखा था. W के बाद मैंने लिखा था नॉर्मल. नॉर्मल आपका लगता है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर. कॉन्टैक्ट सरफेस आपका ऐसे है, तो नॉर्मल विल एक्ट लाइक दिस. दैट इज द सेकंड फोर्स, दैट इज नॉर्मल फोर्स, राइट. चलिए बच्चों, नॉर्मल के बाद जस्ट वेट अ सेकंड, नॉर्मल के बाद हमने लिखा था ओके चलो, तो पहला फोर्स W जो नीचे की तरफ लगा, दूसरा नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस को. चलिए उसके बाद मैंने कौन सा फोर्स लिखा था, नॉर्मल के बाद मैंने शायद लिखा था फ्रिक्शन फोर्स. ओके, अब ये ब्लॉक किस तरफ स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है. ब्लॉक जो है वो ऑब्जेक्ट से नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा. अगर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन को उसको पकड़ के रखने के लिए ऊपर की तरफ लगना पड़ेगा. दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स F, जो ब्लॉक को पकड़ के रखने का काम करेगा, राइट. चलिए चौथा फोर्स मैंने लिखा था फिक्सिशियस फोर्स MA, क्योंकि आपका कार्ट जो है वो आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो फिक्सिशियस फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लगना है MA. और पांचवा मैंने लिखा था टेंशन. यहाँ पे कोई दूरी नहीं है तो टेंशन आने वाला नहीं है. चलिए अब इसको आप खाली बैलेंस करो, आपका काम हो जाएगा. ऊपर की तरफ है फ्रिक्शन, नीचे की तरफ है 1G, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1 इंटू जी. फ्रिक्शन इक्वल टू 1 इंटू जी. दूसरा फोर्स बच्चों, यहाँ पे है N, यहाँ पे है MA. चलिए दैट इज N इक्वल टू MA, दैट्स द सेकंड थिंग. N इज इक्वल टू MA, राइट. चलिए फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है आपका म्यू इंटू एन. ओके, N कितना है आपका, MA है, राइट. मास इक्वल टू 1 है, रख दो वैल्यू. एक्सेलरेशन फाइंड करना है, G का वैल्यू है 10. ओके, म्यू का वैल्यू कितना दिया है, म्यू का वैल्यू दिया है आपको 0.1, तो 0.1 इंटू A इज इक्वल टू 10. सो योर A इज इक्वल टू 10 बाई 0.1. ओ बाप रे, योर आंसर इज रॉन्ग. दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द कार शुड बी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कार्ट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, कार्ट का एक्सेलरेशन होना चाहिए 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे ना, तो आपको ये कार्ट को 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन देना है. तो फिक्सिशियस फोर्स जो है वो कार्ट को साथ, ये जो ब्लॉक है उसको साथ में पकड़ के रखेगा, गिरने नहीं देगा. कहाँ गलती की आपने, अपना गलती चेक करो. चलिए यहाँ पे अपना जो आज का लेक्चर है वो वाइंड अप करेंगे. कल आगे बढ़ेंगे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी के साथ, कि जब आप गाड़ी को टर्न मारते हो, राइट, तो आप कितने मैक्सिमम स्पीड के ऊपर गाड़ी को टर्न कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम सेफ स्पीड, जो हम कल बात करेंगे. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों थियरी. आपके एग्जाम में ये थियरी होती ही होती है, लिख के ले लेना, राइट. चलिए तो मिलेंगे वापस कल अगले क्लास में.